So, my dear friends, let's talk about a trick to remember slope and deflections of the beam. तो जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम लाइक कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, एंड हम लोग डिराइव करते होंगे उसके स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस। तो उसको कैसे याद रखना है उसकी ट्रिक एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगेन क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक याद रखना सर? We can use the Castigliano theorem, we can use the moment area theorem, we can use double integration theorem. There are so many different methods that we can use in the examination hall to calculate these slopes and diffraction. But क्यों आप हमको ये समझा रहे हैं कि आपको ये याद रखनी चाहिए? So my dear friends, it is specifically important for engineering service prelims examination. आपने देखा होगा कि आपने if you have solved the different PYQs, then you would have seen it is not actually important for your GATE examination, but for your ESC and your PSQ examination, it's very important. And also in if I remember, in 2018 mains examination, one compulsory question was asked from this topic, like they asked, please tell the slopes and deflections of 10 different types of beam. I mean beam subjected to different loading. So उसमें ये नहीं वो रिक्वायरमेंट था कि आप पूरा डिराइव करें। आप 10 नंबर क्वेश्चन में इतना सब नहीं कर सकते। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है, आपको लोडिंग टाइप लिखनी है, बीम टाइप लिखना है, एंड उसका कितना स्लोप होगा और कितना डिफ्लेक्शन होगा वो लिखना है। वो तभी पॉसिबल है जब आपको एग्जैक्टली याद है। ओके, और याद कैसे रखना है वो ट्रिक हम एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैंटिलीवर बीम। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आई विल सजेस्ट टू मेक दिस टेबल एंड मेक इन द सेम ऑर्डर इन विच आई हैव मेड। ओके, सो फर्स्ट वन इज द कैंटिलीवर बीम। इट इज अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू अ मोमेंट m at its free end. Then this is the cantilever beam subjected to a point load w at its free end. Again, a cantilever beam subjected to uniformly distributed load UDL of loading intensity W. Again, a cantilever beam subjected to UVL or uniformly varying load such that the maximum of this UVL occurs at the fixed center or a fixed end, and the maximum is W. And this is the last case of cantilever beam. Just a second. Last case of cantilever beam, and that is your cantilever beam subjected to uniformly varying load with the maximum loading at free end. ओके, ये चार केसेस हैं। आपने लिखा होगा, मोस्ट प्रोबब्ली यू वुड हैव रिटन योर शॉर्ट नोट्स, द स्लोप ऑफ दिस इज ml upon EI, WL square upon 2EI. The slope of cantilever beam subjected to uniformly distributed load is WL cube upon 6EI. Then जब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का जो मैक्सिमम होगा वो फिक्स्ड एंड पे होगा तो WL क्यू अपॉन 24EI, एंड जब ये जो पीक होगा, ये जो मैक्सिमम लोड होगा वो फ्री एंड पे होगा तो WL क्यू अपॉन 8EI। ये आपने लिखा होगा। अब इसको याद कैसे करना है? तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ये M है, whenever it is subjected to moment, the beam is subjected to moment, तो क्या होगा? नीचे देखो आप EI, सब में डिनोमिनेटर में EI कॉमन है। ओके, बट दिस M into L always, like when there is m, then L to the power 1 will be there. When point load is there, then L की power 2 will be there. And when varying load is there or distributed load is there, then L to the power 3 will be there. हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी m होगा, जब भी मोमेंट होगा तो L की पावर 1 होगी ऊपर न्यूमरेटर में, जब पॉइंट लोड होगा तो L की पावर 2 होगी, और जब वेरिंग लोड होगा, या वो वेरिंग हो या डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब कंसंट्रेटेड नहीं होगा, देन L टू द पावर 3 विल बी देयर। ओके, नाउ ऑलवेज सम factor will be there in the denominator. The challenge is to how to remember this factor in the denominator. ये आपको देखना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको क्या करना है, ml upon EI आपको याद रख लिया, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए, ml upon EI. Now cantilever beam subjected to point load, the slope will be ml upon 2EI. सर ये m क्या है? ये m मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। जब आप निकालोगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट द योर फिक्स्ड एंड, और जब आप निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, आई मीन फॉर दिस यू विल बी गेटिंग m इक्वल टू हाउ मच, W इंटू L, ठीक है। और जब आप इसको W इंटू L पुट करोगे तो आप क्या पाओगे? ये सेम वैल्यू WL स्क्वायर अपॉन 2EI. देन अगेन व्हेन इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, देन इट विल बी ml upon your how much, 3EI. okay, and last one is ml upon 4EI. तो आप देख रहे हो in this sequence this number in the denominator is in AP. I mean it is these are consecutive number. okay, ml upon EI, ml upon 2EI, ml upon 3EI and ml upon 4EI. ये इस बीम तक हमने याद रख लिया, ठीक है। एंड you just have to put the value of m. For example, here if you put the value of m, you will be getting total load. Total load will be considered over here. How much will be total load? W into L by 2. Okay, half base into area.
सॉरी हाफ बेस इंटू हाइट, ओके। और कितनी दूरी पर ये लग रहा होगा, ये 2l/3 पर लग रहा होगा, ठीक है। नाउ व्हेन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ m एंड यू पुट इट ओवर हियर, यू विल गेट WL3/24EI। तो यहां तक तो याद रखिए ml/EI, ml/2EI, ml/3EI, ml/4EI। सर ये वाला आपने नहीं बताया, जब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है एंड मैक्सिमम ऑफ दिस लोडिंग इज एट द फ्री एंड, तब आपने नहीं बताया। तब आपको याद रखना है वो एक्चुअली सीक्वेंस टूट जाता है, दैट सीक्वेंस इज नॉट सेम। तो इसको याद रखने का थोड़ा ये एक अलग तरीका है कि भाई व्हेन इट इज अप द हिल, व्हेन यू हैव टू climb the height, so it's bit difficult, so there is no any direct trick which follows this sequence। तो सर सीक्वेंस क्या होगा, तो आपको बस इतना याद रखना है बच्चों कि देखो स्लोप इस केस में, इस केस से आई मीन फिफ्थ केस में, फोर्थ केस से स्लोप ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम आपका लोडिंग है वो फ्री एंड पर है, समझ रहे हो। इस वाले में जो फ्री एंड पर एक्चुअल लोडिंग है वो ज्यादा होगी। तो आपको याद रखना है द स्लोप इन दिस पार्टिकुलर फिफ्थ केस विल बी इक्वल टू 3 times the slope। suppose here slope is delta A, so slope in fifth case will be equal to 3 times delta A। कुछ समझ में आया आपको? I mean when we are calculating the slope of cantilever beam with uniformly varying load, then if this variation is such that the maximum loading is at the free end, then this slope will be equal to 3 times of the slope of same cantilever beam, same length, same maximum loading, but this maximum loading will now be acting at the fixed end। उस केस में जो आपको स्लोप मिल रहा होता है उसका एक्जैक्टली 3 टाइम्स आप कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। आप देखिए इसको, व्हेन आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई, जस्ट अ सेकंड, when you multiply by 3 then WL3/8EI आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो होगा कैंटिलीवर बीम का स्लोप की बात। अब हम देखते हैं कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन, ठीक। तो अभी आपने डायरेक्टली ये पर देखा ml/EI, ml/2EI, 3EI, 4EI, ये सब आपने डायरेक्टली याद रखा, ठीक है। अब इसको आपको ऐसे याद रखना है, ये आप डिफ्लेक्शन आपने कैलकुलेट भी किया होगा, ml²/2EI, WL3/3EI, WL4/8EI, WL4/30EI। अब इसको याद कैसे करें? तो याद ऐसे करें, जो भी आपने एक बार स्लोप याद रख लिया, स्लोप इंटू L/2, इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इसमें आप क्या करेंगे, इसका जो आपने स्लोप अभी रिसेंटली आपने देखा था जो ml/2EI था, तो स्लोप इंटू 2l/3 मीन्स न्यूमरेटर में भी हमने एक प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने एक प्लस कर दिया। इसका भी हम फिर क्या स्लोप रिफ्लेक्शन निकालेंगे, स्लोप इंटू 3l/4। अगेन हमने न्यूमरेटर में भी एक नंबर जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में भी एक जोड़ दिया, और इसका क्या आएगा, स्लोप इंटू 4l/5, ठीक है, याद रहेगा। तो स्लोप आप देख चुके ml/EI, ml/2EI, ml/3EI, ml/4EI, ठीक है। और उसके बाद जो फिफ्थ केस था जिसमें मैक्सिमम जो लोडिंग थी वो फ्री एंड पर है, उसका क्या आएगा स्लोप, उसका 3 टाइम्स होगा अगर ये मैक्सिमम लोडिंग फिक्स्ड एंड पर रही होती। तो ये आपने स्लोप सीख लिया। अब कैंटिलीवर बीम में हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो डिफ्लेक्शन अगेन सेम ऑर्डर आप लिखेंगे। उसके बाद करेंगे क्या करेंगे, डेल्टा इंटू L/2, देन सॉरी थीटा इंटू L/2, देन थीटा इंटू 2l/3, थीटा इंटू 3l/4, थीटा इंटू 4l/5। आप इसको रख के देखेंगे। फॉर एग्जांपल अपन इसी को ही देख लेते हैं। इसका थीटा क्या था, WL3/24EI, ठीक है। इसमें आप 24EI में मल्टीप्लाई कीजिए, WL3/24EI 1/24 अगर आप करते हैं तो 4 × 24 तो 6 × 30, ये आपका डिनोमिनेटर में 30 आ गया, याद रहेगा। अब कहानी इसकी फंस गई भाई साहब फिर से। इसने ये हमेशा याद रखना, जब भी कैंटिलीवर बीम में अप द हिल आप जाओगे तो डिफिकल्टी आएगी। इसीलिए उसने कोई आपका प्रीवियस सीक्वेंस पिछले वाले में नहीं फॉलो किया था, इस वाले में भी आपको कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि हम अप द हिल जा रहे हैं। अब इसको कैसे रखना है सर, इसको कैसे रटना है, क्या ट्रिक है? तो बेटा इसकी स्लोप क्या था, WL3/8EI था, ठीक है। अब इसी में आप एक काम करो, ये जो 8 है इसमें आप एक काम करो, इस 8 में +3 और -3 कर दो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कि देखो स्लोप क्या था, WL3/EI इंटू 1/8 था ना स्लोप। अब आप क्या करो, 8 + 3 कर दो, न्यूमरेटर में लिख दो 8 + 3 अपॉन डिनोमिनेटर में लिख दो 8 - 3। तो ये 8 + 3 क्या हो गया बेटा, 8 × 3 = 11, 8 + 3 11, 8 - 3 5। सर ये तो 11/5 आया है, आपको तो 11/120 निकालना है। तो क्या करो बेटा, फैक्टोरियल ले लो, 11/5 फैक्टोरियल। तो वॉट एवर द डिनोमिनेटर वॉज देयर इन द स्लोप ऑफ दिस पार्टिकुलर बीम, 8 था आपका डिनोमिनेटर, आपने 8 + 3 न्यूमरेटर में लिख दिया, 8 - 3 डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो 8 + 3 आपका 11 हो गया और 8 - 3 आपका 5 हो गया, उस 5 का आपने फैक्टोरियल ले लिया बस। तो ये आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट, आप
एक बार देखोगे आपको अजीब सा लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नेसेसरी का ट्रिक बता रहे हैं, बट जब आप एटलीस्ट इसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो आप जब ब्लाइंडली अब रिमेंबर व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग ब्लाइंडली, दैट 11/120 वो इतना आपको बहुत डिफिकल्ट था, ये आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो 11/5 फैक्टोरियल इज योर 11/120। तो इस तरीके से आपने कैंटिलीवर बीम के, किसके, कैंटिलीवर बीम के 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन याद कर लिए। ठीक है, अब अपन आते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में। सिंपली सपोर्टेड बीम में बेसिकली हम लोग 2 ही केस देखते हैं। ठीक है, उसी 2 केस में, बाकी आपको याद करने का एज इट इज को डायरेक्ट तरीका नहीं है। तो बाकी के लिए क्या आपको क्या करना है, बाकी के लिए आपको डायरेक्टली, या तो जनरली ईएस में नहीं पूछेगा इंजीनियरिंग सर्विस में, अगर पूछता है बाई चांस तो आपको उस टाइम के लिए स्किप कर देना है। फिर आपके पास अगर टाइम बच रहा है देन यू विल हैव टू कम बैक एंड यू विल हैव टू सॉल्व बाय योर आइदर डबल इंटीग्रेशन मेथड और योर कास्टिग्लियानो थ्योरम मेथड। ओके, नाउ सिंपली सपोर्टेड बीम, अगेन only 2 cases will be there. Simply supported beam subjected to point load W और simply supported beam subjected to your uniformly distributed load. ठीक है, तो इसका आपने स्लोप याद रखा होगा, WL²/16 EI एंड WL³/24 EI। ये आपने जनरली याद बुक्स में और जो भी आपने डिराइव किया होगा वो रखा होगा। अब इसको याद कैसे करें, तो याद रखना जो आपका ये कैंटिलीवर बीम का अप द हिल वाला फॉर्मूला था, वो था तो बहुत डिफिकल्ट था, तो वो बहुत डिफिकल्ट लेकिन बहुत यूजफुल भी था। आपको अकेले अगर वो फॉर्मूला याद है तो आपको 2 और फॉर्मूला याद करवा देगा। ठीक है, कैसे भाई, कैसे? आपने इसका स्लोप क्या याद किया था, याद करो, WL²/8EI आपने याद किया था, WL²/8EI। देखो यहाँ पर, देखो ये स्लोप आपने याद किया था इसका, WL3/8EI। ठीक है, आई थिंक थोड़ी सी, हाँ WL, ठीक है, ये आपने याद किया था। अब इसमें क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे L/2 का, जो भी आपने स्लोप याद किया था उसमें L/2 का मल्टीप्लाई करोगे। माय डियर फ्रेंड, ये न्यूमरेटर में जो L की पावर 1 2 3 4 है ना, इसमें मैं भी नहीं जा रहा हूँ, वो आप हमेशा याद कर लोगे कि भाई अगर whenever there is a point load then slope will be L⁻², when there is a moment then slope will be L⁻1, when slope is varying then L⁻3, वो सब आप याद कर लोगे। ठीक है, मेन डिफिकल्टी होती है वो ये नंबर से याद करने की होती है, वो नंबर दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके, सो वॉट एवर वॉज द स्लोप फॉर दिस कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड विद मैक्सिमम लोडिंग एट द फ्री एंड, उसका जितना भी आया था उसका 1/2 कर दो आप। तो ठीक है, ये L/2 1/2 जो करना कर दो, L याद रखना, फैक्टर याद हो जाएगा, मेन तो आपको फैक्टर याद रखना है। ठीक है, तो आपने L/2 कर दिया, कितना आया 16 EI। सिमिलरली जब आपको ये देखना है, आपको सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू योर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो आप क्या करो, L/3 कर दो। ठीक है, L/3 या फिर 1/3 जो भी हो यार, वो देख लेना। ठीक है, समझ गए होगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेन डिफिकल्टी होती है नंबर याद करने की, L सब याद हो जाता है, L इज L। ओके, तो जब इसका आपने स्लोप हाफ कर दिया तो आपको सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड का स्लोप मिल जाएगा। एंड व्हेन आपने इसका स्लोप 1/3 कर दिया तो सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का आपको स्लोप मिल जाएगा। ये स्लोप कहाँ का है, ये स्लोप है आपका ये फिक्स्ड एंड्स का, यहाँ का ये स्लोप है, थीटा ए थीटा बी, ये सब पूछता रहता है क्वेश्चन में, आप देखिएगा। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का स्लोप तो हो गया भाई साहब। अब स्लोप हो गया, अब ये कैसे याद रखते हैं, ये याद रखने का तरीका है, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम का जो डिफ्लेक्शन आता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जो व्हेनेवर इट इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड देन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड विल बी हाउ मच, θ/3। थीटा आपने अभी देख लिया, WL²/16 EI/3 कर दीजिए। ठीक है, तो थीटा कितना था भैया, थीटा इतना था जो स्लोप इसका आ रहा है आपका कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सॉरी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लोडिंग एट द फ्री एंड, उसका 1/2 आ रहा था, तो उससे आपने डायरेक्टली ये निकाल लिया था। और उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा, जो आपका इसका स्लोप आया है, ये जो थीटा ए और थीटा बी निकाला है आपने यहाँ का, तो इसका 1/3 कर दोगे तो ये आपका वो आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। अब भाई साहब पसीने छूट जाते हैं इसको याद रखने में। ठीक है, एक्चुअली डायरेक्टली कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम सीधे इसको थीटा और फलाने दिखाने से कर दें। अगर आप थीटा से करने जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि भाई इसका कितना थीटा इतना आया था, WL3/24 EI, तो 24 EI, तो आप इसका कैसे निकाल सकते हैं, थीटा इंटू 5/16। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप जो भी थीटा आपने निकाला उसमें 5/16 कर देंगे तो 5/384 आ जाएगा। अब ये 5/16 सर जी कैसे याद रखें, इसको याद रखने के बेसिकली 2 मेथड्स हैं। ठीक है, मैंने जो यूज़ किया वो बताता हूँ जनरली, और जो बच्चे और जो मेरे साथ के लोग थे वो क्या यूज़ करते थे वो भी बताता हूँ। ठीक है, मैंने क्या यूज़ किया था कि ये WL3/24 का ये 4 उठा लिया मैंने। ठीक है, और इस 4+1 कर दिया न्यूमरेटर में, अपॉन इस 4² कर दिया डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 4+1 आपका 5 हो गया और 4² 16 हो गया, उसी को थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? ये WL3/24 EI का जो 4 था वो हमने उठा लिया, 4+1 न्यूमरेटर में कर दिया, 4² डिनोमिनेटर में कर दिया, तो 5/16 आ गया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेथड मैंने यूज़ किया था। ये अगेन मैं कह रहा हूँ, ये स्टार्टिंग में एक बार जब आप देख रहे हो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा,
आप 2-3 बार जब इसको रिवाइज करोगे फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बता दोगे 5/384, ठीक है। अगर आप ब्लाइंडली और इफ यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर द फॉर्मूला 5/384, इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। देयर इज वन मोर मेथड, व्हाट इज दैट मेथड, आई विल टेल यू। सी व्हाट टू डू, 3 4 माय गॉड 3 4 5 ऐसे करके आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिख लीजिए, 3 4 5 और 5 + 3 इसको जोड़ दीजिए तो 8 आ गया। क्लियर, समझ में आया क्या होगा भाई? WL की पावर 4/EI तक आपने लिख लिया। अब उसका फैक्टर क्या होगा वो आपको नहीं याद रखना, तो आपको याद रखना है कुछ ये मतलब मैंने मेथड नहीं यूज किया था, मेनी ऑफ माय कलीग्स एंड माय अदर स्टूडेंट्स हैव यूज्ड दिस मेथड टू रिमेंबर, यूज दिस ट्रिक। क्या है वो ट्रिक? 3 4 5, अगेन आई एम डूइंग ओवर हियर, 3 4 5 आपने ऐसे करके लिख दिया और ये 3 और 5 आपने ऐड कर दिए तो 5 + 3 ये आपका 5/384 हो गया, ठीक है। ये 2 मेथड्स हैं, इफ आई थिंक इट विल हेल्प यू, ठीक है। बट you have just to write down all these tricks and you have to revise these tricks at least 2-3 times, then you will be thorough with this. Now very important, directly yes, ESE prelims में आप you will see the questions, fixed beam with point load, ठीक है। ये भाई क्या है? ये fixed beam, this is the fixed beam subjected to point load W। इसके केस में क्या होगा भाई? इसके केस में आपने देखा था WL³ 48EI, ये आपने सिंपली सपोर्टेड बीम याद रखी थी। तो फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड के केस में दैट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स द डिफ्लेक्शन ऑफ और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू सेम पॉइंट लोड W। क्लियर मीन्स डेल्टा फिक्स्ड इक्वल टू डेल्टा सिंपली सपोर्टेड बीम अपॉन 4। अब सिंपली सपोर्टेड बीम का कितना था? WL³ 48EI इंटू 4 करोगे तो ये आपका आ जाता है WL³ अपॉन 192EI, ठीक है। क्लियर, कुछ तो क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसके केस में स्लोप क्या रहता है सर? स्लोप 0 रहेगा। स्लोप 0 रहेगा भैया यहाँ पे दोनों एंड पे। अब आप इसका जब वो इक्वेशन बनाओगे तो देखोगे स्लोप 0 आ रहा है। मेरी डोंट गो थ्रू माय हैंड राइटिंग, इट्स वेरी पुअर। इट ऑल्सो शोज दैट योर हैंड राइटिंग डज नॉट मैटर इन इंजीनियरिंग सर्विस मेंस एग्जामिनेशन। ओके, ठीक है। नाउ अगेन फिक्स्ड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन अ फिक्स्ड बीम। अब इसके केस में क्या है? You have remembered this 5/384. What you have to do? It will be equal to 1/5 times of maximum deflection of simply supported beam subjected to same type of same pattern of UDL. Okay, so delta fixed with UDL will be equal to delta simply supported beam with UDL upon 5. तो ये क्या था इसका? What was the expression? 5/384 into WL⁴/EI. Okay, now 5 will be cancelled. How much will you be getting? You will be getting WL⁴/384EI. Clear? So this was all about these tricks. Now there are actually these 3 more types of loading which are not very frequently asked, but they have high chances to be asked after 2 or 3 years in engineering service prelims examination. Okay, so the slope and deflection of this cantilever beam subjected to concentrated moment at free end we have seen. What will be theta? Theta will be ML upon EI. You have seen. Now what will be delta? You all already seen. ML square upon 2EI. ML square upon 2EI. Okay. Now when simply supported beam is subjected to two concentrated moments in opposite direction at its vertically opposite ends, then theta will be equal to half of this theta. ठीक है, जो आपने ये थीटा निकाला है उसका ये θ/2 होता है, और इसके केस में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है वो इसका डेल्टा/4 हो जाता है। मीन्स व्हाट विल यू गेटिंग? ML square upon 8EI. Clear? Now when simply supported beam subjected to concentrated load at the midpoint or midspan, then the maximum deflection will be 0. यहाँ पर जो आएगा वो डिफ्लेक्शन 0 होगा, ठीक है। सॉरी, नॉट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, योर डिफ्लेक्शन एट द मिड पॉइंट और मिड स्पैन विल बी 0, एंड व्हाट विल बी थीटा? थीटा विल बी इक्वल टू दिस θ/12. क्लियर, याद रहेगा आपको, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको लिख दिया है। इफ यू कैन रिमेंबर देन गुड, इफ यू कैन नॉट रिमेंबर देन ऑल्सो गुड, बट टेस्ट सीरीज में एंड प्रीलिम्स में आई थिंक काफ़ी साल से ये वाले क्वेश्चंस नहीं आए, तो यू कैन सी, ठीक है। Please go through it, and after it if you have confusion or if you have any doubt, please let me know. Apart from this also, if you are not comfortable with Hindi, please let me know. I will explain in English. And one more thing is,
any more trick if you want. If you are facing difficulty to remember any such type of formula which have very high chances to be asked in your engineering service prelims examination or gate examination or any PSU or any examination, and you are facing difficulty to remember it, please let me know. I will tell you what trick I used to do during my preparation time, and I will also help you if you have some conceptual issues also. So that's it. Thank you so much.